आज जो हमारे गेस्ट हैं, he had that courage to take this journey. So that was one of those moments that gave me that motivation. So your brainchild, but still, Stepson. what was the thought? So I was working with. I know your journey. So I was the best person in the company, which is funded by one of the biggest investment groups in US. So are you still a part of that company? No. चुभता है? बहुत ज्यादा यार। कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। What drove you? कुछ जगहों से आप निकलोगे तभी आप किसी और जगह पे एंटर कर पाओगे। Welcome to a new episode of Be Banya Wise. Entrepreneurship. जितना डिफिकल्ट ये वर्ड है, उतनी ही डिफिकल्ट इसकी जर्नी होती है. एंड वेरी लेस पीपल हैव द करेज टू वॉक ऑन दिस रोड. आज जो हमारे गेस्ट हैं, he had that courage to take this journey. Founder of UI Live, a leading digital marketing agency in India, Mr. Akash Manchanda. Welcome, bhai. Thank you so much. Never expected this kind of an introduction from you, especially considering the kind of history we share. But yeah, thank you so much. You are doing a great job, and it's my pleasure to be here. I know you from your childhood. हमने साथ में बचपन बिताया है. बिल्कुल. एंड हमने जॉब भी करी है, हम बिजनेस भी कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि जॉब बेटर है या बिजनेस. बट आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास एक राइट आंसर है, या फिर इसका राइट आंसर है भी या नहीं, वो भी एक सवाल है. तो आज हम ये जानना चाहते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट. So I think इसमें कुछ right या wrong नहीं है. It's all about aspirations. There are people who are doing very good, like working for different brands. वो वहाँ पे scale कर रहे हैं. They have that aspiration of being the best guy in the company. To be the top guy in the company. अगर वो approach भी वो ले रहे हैं, they are doing pretty good. But on the other side, there are people who have that aspiration to build something on their own. वो हो सकता है मे बी फैमिली में उन्होंने वो चीज़ देखी है, मे बी लाइक फ्रॉम इंटरनली उनको वो zeal है, that we want to build something. If you have that in you, willingness है, then go for it. So इसका I would say कोई सही या गलत नहीं है. Whatever you like, just go for it and you'll excel in that. So like you said, bhai, but I know your journey. I have seen you grow. Yeah. जब आप जॉब कर रहे थे, I have seen you growing to a level जो आपकी एज में मतलब एक अचीवमेंट ही थी. I believe you were 27, 28 when you became a CMO of your company. 26. Yes, quite a young age. Yeah. So that was an achievement. वो मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट के लिए, मेरे ख्याल से हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी एक अचीवमेंट मानी जाती थी कि यार इतने कम एज में बंदा इतनी बड़ी कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन गया. सो यू वर ऑन सच अ गुड लेवल. आई एम श्योर कि उसके साथ पर्क्स भी अच्छे होंगे. बट स्टिल यू टुक दैट डिसीजन 4 years 5 years back, to start your own business. What was the thought? What drove you? So if I talk about myself, मेरी journey different companies के साथ रही है. But even if I talk about that first job, जहाँ पे I was earning not more than 12,000 rupees, मेरा mindset ही वही था. मैं project coordinator की भी तरह काम कर रहा हूँ, but मेरा thought हमेशा ये होता था how to manage this entire project, how I can be the next in command. मेरे जो बॉसेस थे, मेरे जो सीनियर मैनेजमेंट थी, मैं हमेशा उनके साथ डिस्कस करता रहता था कि ये वाला प्रोजेक्ट है, माय रोल इज दिस मच, बट मेरे में वो नॉलेज ग्रास्प करने की आई वुड से कुछ था, अंदर से आता था. सेम थिंग आई कंटिन्यूड इन माय सेकंड जॉब एज वेल. There I joined in sales department and I was reporting directly to the associate director. But within, I would say 6-7 months time, I was directly working with the CFO of that company and the CMO of that company. Right. Because I wanted to understand more. I wanted to understand that industry better. And that helped me be the best performer in the entire team. I was a fresher, but apart from that, it was a 10-member team. Other people were there in the team जिनका 10 साल से ऊपर का experience था. But at the same time, if I look at my performance, I was the best performer there. Right. वो कैसे हुआ? Because I had that thing in me. I want to understand this and I want to crack this particular field. Same thing happened in the next company, and that helped me, I would say, get to the top management at a very early age. Right. So that was my journey, and I would say that depends on a particular person, how hungry that person is for learning. Yeah. And how hungry that person is to prove the point, and that was there in me, I believe. So is it safe to say that आपने सब कुछ अचीव कर लिया था, सब कुछ लर्न कर लिया था वहाँ पर? A saturation point came into your job and you thought
there is something new in the world, I should learn and I should get that knowledge. अब मेरा हो गया यहाँ पर. So मेरे साथ क्या था, स्टार्टिंग से ही चाहे किसी कंपनी में मेरे को 1 साल 2 साल भी हुए, बट आई वॉज एबल टू नेविगेट एंड आई वॉज वर्किंग डायरेक्टली विद द टॉप मैनेजमेंट. अब आप टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, उसके 2 साइड्स हो सकते हैं. एक, you'll be the highest paid person in the company. On the other side, आप हमेशा आपकी एस्पिरेशंस चेंज हो जाती है. अब मेरी एस्पिरेशन ये हो गई थी, द पर्सन आई एम रिपोर्टिंग टू, अब वो CEO हैं कंपनी के, सो आई वांट टू टेक दैट चेयर समडे. So that kind of thought process I developed somehow. अब वो वाली अगर चेयर चाहिए तो उसके लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा. बैकग्राउंड वाइज देखूं, फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाज नॉट देयर, बट एट द सेम टाइम रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाज देयर बिकॉज आई वांटेड टू गेट टू दैट लेवल. अब वो चीज अगर करनी है, कूदना है, तो first opportunity was there in that brand where I was the CMO. I was the equity holder as well in that company. तो वो terminologies जब समझ आने लग गई थी ना, I was like कि अब मेरे को इतनी equity नहीं, I want to build something of my own. And अब अपना ही build करना है, तो फिर कुछ जगहों से आप निकलोगे तभी आप किसी और जगह पे enter कर पाओगे. So that is the decision I had to take, and I took that decision at that age. So I think when you are involved with such a you are involved with top management, you're working closely with them, you know the product in and out, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, and you know your efforts, कि आप कितना efforts डाल रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने में या उसको उस कंपनी को एक्सेल करवाने में. So आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ऑब्वियसली मैं ये किसी और के लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए भी कर सकता हूँ. बिल्कुल. ठीक है. और जैसे आपने कहा कि you saw your CEO working with your CEO, you thought that you want to take that chair someday. Yeah. So you have that confidence कि आज मैं इनके लिए बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट, कल को मैं अपने लिए बना सकता हूँ. सो इफ़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, सो आई कैन टेक दिस जर्नी, आई कैन टेक दिस रिस्क. यार ऑनेस्टली बताऊँ तो कॉन्फिडेंस तो नहीं था. और बट मेरी फिलॉसफी हमेशा ये रहती है, इफ़ यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, पहले वो अपॉर्चुनिटी ले लो कि मुझे आती है, मैं कर लूँगा. Once you have got that opportunity, then you have days and nights to figure out how to get that thing done. That's the kind of philosophy That's I have a rare followed. quality. Yeah. That's a very rare quality यार, कि आप you are ready to take that risk, कि you have an opportunity, you want to grab that opportunity, but you have not done your homework. So it's all about, देखो एक simple comparison है, skill versus will, right? If you have that willingness to do something, तो आपको opportunity मिली तो आप opportunity ले लो. Skill is something that you can learn. Skill can be learned, especially in today's day and age. You have access to internet, you have access to YouTube, you have access to Instagram, you have access to other e-learning platforms as well. Skill तो आप सीख जाओगे, but उस skill को acquire करने के लिए आप महीनों लगा रहे हो या फिर आप 6-7 रातें अपनी खराब कर रहे हो. खराब नहीं बोलूंगा, बट 6-7 रातें आप अपनी काली कर रहे हो टू एक्वायर दैट स्किल, एक्वायर दैट नॉलेज. मुझे हमेशा से ये लगता है, इफ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, आप अभी उस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ बोलो, उसके लिए बैकग्राउंड में मेहनत करो, ताकि अगले दिन जब आप ऑफिस में जाओगे, nobody is better than you, at least in that particular domain. That's the kind of methodology I have always followed. So like you mentioned भाई that आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम. you can go on multiple platforms and you can learn and you can acquire skills in no time. So मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं मानता हूँ स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क. अगर आपको पता है कि आपने क्या करना है, यू कैन फाइंड आउट वेज टू अकम्प्लिश दैट. करेक्ट, राइट. तो अगर आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता, तो ऑब्वियसली आप कभी नहीं कर पाओगे वो. लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली उसमें कूदोगे. करेक्ट. अगर आपके अंदर वो एक विल होगा, ज़ील होगी कि यार दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, दिस इज माय पैशन, आई वांट टू अचीव इट, तो यू विल फाइंड आउट वेज टू अचीव इट. करेक्ट. अगर आपको सेल्फ डाउट होगा या फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे. दिस इज व्हाट आई फील. सेल्फ डाउट तो यार आज भी आता है. I was coming on to that, yeah. So self doubt, hand to heart, self doubt अभी भी आता है. My next question is about this only, bhai, that you started this business, you were on such a good position,
a dream job for anyone, you know, a 26-year-old guy on a CMO position, dream job, but still you took a decision to start your own business. कभी माइंड में ये नहीं आया कि ये फेल हो गया तो क्या? क्योंकि यार देखो, ऑब्वियसली आप कुछ कर रहे हो, आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग आपसे एक एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं, या आपकी एक इमेज सेट हो जाती है, यू नो, फिर आप अपनी पैशन फॉलो करने निकलते हो, तो बैक ऑफ द माइंड ये भी होता है यार ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कभी वो माइंड में आया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि यार ये डिसीजन सही है भी या नहीं? बहुत बार ये आता है, अभी भी आता है, झूठ क्यों बोलूं? सो ये वाले थॉट्स तो अभी भी आते हैं कि यार यू नो व्हाट इफ, अब वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क, इट्स ऑलरेडी वर्किंग, बट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू स्केल इट टू द लेवल जो मैं लेवल अचीव करना चाहता हूँ, तो वो डाउट्स आते हैं. बट जब भी ये डाउट्स आते हैं, सो आई गो इन माई जोन, आई स्पेंड सम टाइम अलोन, आई सो मेरे लिए हमेशा मेथोडोलॉजी क्या रहती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी. हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है. डिस्टेंस क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना, आई कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस. डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली दिस. तो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, थिंक अबाउट योर करंट पॉइंट, थिंक अबाउट योर डेस्टिनेशन. उस टाइम पे सोच के देखो, अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांसेस के होते हुए भी मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, व्हाट शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, एंड आई ऑलवेज गेट माई आंसर्स. वो सेल्फ डाउट जो थोड़ा बहुत उस टाइम पे आता है, आई हैव बीन एबल टू हैंडल दैट विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच. दैट वर्क्स फॉर मी. लाइक यू सेड यार कि मतलब डिस्टेंस या आप अपने आप मेजर करते हो कि योर जर्नी इज नेवर लीनियर, राइट? सो कभी कभार कोई हर्डल्स आएंगे, कभी कोई चैलेंजेस आएंगे, तो जर्नी हमेशा ऐसी ऐसी zigzag ही रहने वाली है. बट आई थिंक कि अगर आपने किसी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन नो मैटर व्हाट, अगर आपका बिलीव अपने पे पूरा स्ट्रॉन्ग है. गोल शुड बी क्लियर इन योर हेड. अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको path A, path B, path C, or whatever path you have to walk on. Just goal should be very clear, and that is something that I really look at. So यार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में पॉपअप कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अ गाय डूइंग अ 9 to 5 जॉब इन IT, you know, he is earning 60 कौन lakh. कर रहा है 9 to 5 आज के टाइम पे? 9 to 5 नहीं कर रहा, बट 10 घंटे नौकरी कर रहा है. इंडिया में तो यही है. करेक्ट. तो वो 60 लाख रुपीस का उसका एनुअल पैकेज है, ठीक है. और एक बिजनेसमैन वो अपनी पूरा दिन घिसा के, पूरा साल घिसा के, इतनी सारी टेंशन लेके भी 60 लाख रुपीस ही कमा पा रहा है. सो आपके व्यू में क्या बेटर है, वो जॉब करना, 60 लाख रुपीस आ रहे हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर वो बिजनेस करना जहाँ पर भी 60 लाख रुपीस आ रहे हैं बट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अगेन मतलब डिपेंड करता है. इफ यू आर हैप्पी इन दैट जॉब which is giving you 60 lakhs a year versus that kind of an environment where you have immense pressure but opportunity to make more money. So it all depends on you. If I talk about a person like me, money, yes, definitely it's very important for me, but at the same time the kind of work that I'm doing, agar I'm doing the same thing again and again, if I'm in that loop जिसमें मुझे एक ही चीज बार बार करनी है, मे बी लाइक I'm exploring other areas as well in that same business, but at the same time I'm working for someone else, that doesn't give me that kick. So the second point that I was making is आप as an employee 12 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हो, and since you are very passionate about the work that you do, आप 16 घंटे काम करोगे. आप 16 घंटे काम करोगे, but even for that extra effort you'll end up getting the same amount. People do say overtime मिलता है. यार ये सब कुछ नहीं होता. It's your job, you have to do it, and even if you have to spend 16 hours, you'll end up getting the same amount. On the other side, as a founder, as the owner of that particular company, if let's say you are increasing the overall effort that you are putting into the business, you can make more money. Correct. So you always have that opportunity to increase your earning potential when you are running your own business. Tension है, सब कुछ है, but number one, you like that kind of an environment, that's why you have chosen that path. Number two, there is no limit to that earning potential. So that playing ground is there with you.
So that's the kind of thing, I believe people have to be aware about, when they are taking that kind of a decision. मैं job में continue करूँ, मैं business में continue करूँ. And people who are happy working in that job environment, बिल्कुल करो यार, there is no harm. कोई इसमें disrespect नहीं है. You are putting in efforts, you are making money for you and your family, and you are living a good life. राइट On मुझे the other, ऐसा लगता है कि यार कि मतलब व्हाट आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग बट अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप ट्रेट होता है एक, अगर वो सब में नहीं होता, ठीक है, इट्स नॉट बैड कि अगर आप में नहीं है तो, बट वो सब में नहीं होता. अगर आपका लीडरशिप ट्रेट है तो आपका दिमाग अपने आप चलता है कि यार ये मुझे कुछ करना है, मतलब आई वांट टू रन समथिंग ऑफ माय ओन, आई वांट टू मेक समथिंग ऑफ माय ओन, मुझे अपना ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है. तो अगर आपके अंदर वो ट्रेट है तो गो फॉर इट. आपको अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. टेक दैट स्टेप. जैसे आपने कहा कि आप 12 घंटे 16 घंटे जॉब करोगे तो भी आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं. बिजनेस में आप जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, ठीक है. आप 12 घंटे 15 घंटे काम करोगे, 20 घंटे काम करोगे, आप ही इंसेंटिवाइज होगे. correct. ऑब्वियसली एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Added बट बहुत लोगों को responsibilities हैं, added risk भी है. करेक्ट. Correct. तो ये बहुत लोगों को ये चीज़ मतलब पुश करती है, ये इन्वायरमेंट बहुत पसंद है कि जहाँ पर उनके पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे आर लीडिंग सम पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी लाइफ्स. उनको अपना भी बनाना है करियर, उनका भी करियर बचा के रखना है, ठीक है. एंड ऑल्सो कि आप जितना मेहनत करोगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती जाएगी. Exactly. आप अभी 60 लाख रुपीज़ पर एनम कमा रहे हो, दिन में 15 घंटे काम कर रहे हो, 20 घंटे काम कर रहे हो, दैट इज़ अप टू यू. बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आप 60 लाख को 6 करोड़ लेके जा सकते हो विद इन एन ईयर. दैट इज़ पॉसिबल एंड वी हैव सीन मल्टीपल बिजनेसेस डू दैट. दैट इज़ नॉट समथिंग कि वो एक सुपरफिशियल बातें हैं, नहीं, ऐसा हुआ है, हमने देखा है. बट इन अ जॉब ऑब्वियसली आप स्लो ग्रोथ कर पाओगे, एक स्लोली ही आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचोगे. इट इज़ नॉट रॉन्ग लाइक यू सेड कि इट इज़ नॉट रॉन्ग टू डू अ जॉब, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू स्टार्ट अ बिजनेस. बट अगर आपके अंदर वो लीडरशिप ट्रेट है एंड यू हैव दैट zeal इन यू, यू हैव दैट पैशन, गो फॉर इट, टेक दैट स्टेप. बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास आइडिया है, बट मैं क्या करूँ. बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ों के बारे में टेंशन लेनी ही चाहिए, क्योंकि आइडिया होना एक चीज़ है, एग्जीक्यूशन अलग है. आइडिया आपके पास है, बहुतों के पास है यार, पर एग्जीक्यूट करने का प्लान है, वो ज़रूरी है. बट वो भी प्लान तभी आएगा जब यू विल टेक दैट स्टेप फॉर योर सेल्फ. So if that idea is there, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आइडिया तो सबके पास है. करेक्ट. तो आइडिया आज छोटे बच्चे के पास भी है, एंड एक 40 years old person who have good amount of experience उसके पास भी है. बट एग्जीक्यूशन प्लान इज समथिंग, अगर आपके पास नहीं है तो उस आइडिया का क्या करोगे. जैसे मैं कोई कॉन्वर्सेशंस होती है, मैं सबको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड में था, आई थिंक अराउंड दैट टाइम. आई यूज्ड टू थिंक अबाउट बिल्डिंग अ वेबसाइट जिसपे मैं अपने लोकल एरिया के सारे रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करूंगा, एंड पीपल कैन सिंपली गो ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंड ऑर्डर फूड. क्या था अब वो आइडिया था. मैं ये सोचता था कि आई एम जस्ट 17 years old, मेरे पास कोई एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास हाउ टू इवन डू दिस थिंग, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है. अब फिर थोड़े टाइम बाद फूड पांडा आ गया. अब फूड पांडा आया, अब उसके भी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग टीम है, उनके पास कौन से रिसोर्सेज या स्किल्स थे. दे हैड द करेज टू टेक दैट स्टेप They फॉर देमसेल्व्स. executed. हाँ, उन्होंने R&D करी, मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट किया. वो योर आइडिया वहीं का वहीं रहा, और उनके पास भी सिमिलर आइडिया आया तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो कुछ बन गया. एग्जीक्यूट करा, उन्होंने लॉन्च करा, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स इन द मार्केट हु आर स्टिल देयर इन द मार्केट, जिन्होंने उस मॉडल को रिफाइन करा. तो उनके भी अगर आप ओरिजिनल आइडिया सोचोगे तो उनका ओरिजिनल आइडिया ये नहीं था, राइट. ये फूड बिजनेस में, फूड लॉजिस्टिक्स फर्म आई वुड से, उनका ये आइडिया ओरिजिनली नहीं था, बट उन्होंने एक एग्जिस्टिंग आइडिया देखा जो किसी ने हिम्मत करी लॉन्च करने की, उन्होंने वो आइडिया देखा और उन्होंने रिफाइन करके उसको आज एक फॉर्च्यून 500 बिजनेस बना दिया. सो आई मीन एग्जीक्यूशन इज की. सो लाइक यू मेंशन्ड दैट 11th 12th में आइडिया आ गया था आपको दैट यू वांट टू मेक अ वेबसाइट जहाँ पर यू वांट टू मैप एवरी रेस्टोरेंट. आई रिमेंबर कि हम साथ में क्रिकेट भी खेला करते थे. वी यूज टू लव क्रिकेट. व्हाट वी स्टिल लव क्रिकेट जब तक विराट कोहली है. I mean, it's not about Virat Kohli, it's about passion for the game, वो अभी भी है. और यू एंड आई ऑल्सो यूज टू लव सिंगिंग, तो एक वो भी पैशन था हमारा, बट वी नेवर फॉलोड दैट पैशन. सो व्हाट मेड यू एग्जीक्यूट दिस? So
Harshul, I'll tell you one incident. So I was working with a dental group at that point of time. I think ये 2019 की बात है, 19-20 की. So I was in US at that time, and I was traveling a lot. I was exploring different cities, in US. बहुत बढ़िया time चल रहा था. Work wise, I worked on one product, which is a dental ecosystem automation platform. So I launched that product. बहुत peak पे चल रहा हूँ. But मैं ऑफिस से जब घर आ जाता था ना, I used to do my research, think about different things जो मैं कर सकूँ. मैं हमेशा अपने आसपास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढ रहा था. नोइंगली अननोइंगली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आई कैन से कि आई हैव बिल्ड दिस थिंग. आई कैन कॉल माई सेल्फ अ बिजनेसमैन. तो आपका जब माइंड ही हर वक्त इस तरह से चल रहा है तो आप अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? सो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, कोविड का टाइम था, मैं इंडिया वापस आया. दैट वॉज द टाइम वेर आई थॉट कि यार अब तो कोविड का टाइम है, घर पे बैठा हूँ. इवन दो एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग फॉर 2 डिफरेंट कंपनीज, एक यूएस एंटिटी, एक इंडियन एंटिटी. तो मैं रात के टाइम पे यूएस एंटिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मॉर्निंग में टिल 5 o'clock आई वॉज वर्किंग फॉर दैट इंडियन एंटिटी. लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या बिल्ड करूँ. दैट वॉज द टाइम वेर आई लॉन्च्ड माई फर्स्ट स्टार्टअप, करेक्ट, घर पे बैठे बैठे. दैट वॉज दैट ग्लोबल. सो मैंने उस नाम से अपना पहला स्टार्टअप किया था. अब मैं उस टाइम अगर ये सोचने लग जाता कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, तो मैं बैठा रह जाता. बट आई फिगर्ड आउट अ वे कि मैं लिमिटेशंस के साथ भी कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं. So I called all my friends, all the people that I know in my network, and I created a virtual team and started offering services to brands. अब वो हर कोई अपने घर से ही काम कर रहा था, तो आई वॉज एबल टू गेट मोर गेट 2-3 कस्टमर्स एज वेल, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ इट. अब जब आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ना कि आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसके बाद आप फुल फ्लेजेड ये सोच रहे हो 24/7 कि मेरे को कुछ बड़े लेवल पे ही अपना बिल्ड करना है. अगेन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. जब आप ऐसा कंटिन्यूसली सोचते हो तो आपके आसपास भी लोग उसी बारे में आपसे बात करना शुरू कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके सामने आनी शुरू हो जाती है. वेरी लाइटली सेड भाई, क्योंकि जॉब से स्टार्ट किया मैंने, ये बैंक में मल्टीपल बैंक्स में काम किया. एंड देर वॉज सर्टन टाइम जब मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि यार देर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न. और मुझे ना ये चीज़ बड़ी इम्पेशेंट करती है कि यार जब मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा ना, व्हाट आई एम डूइंग है, आई एम कमिंग इनटू माय कंफर्ट जोन. और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप अपने कंफर्ट जोन में घुस गए, आपकी जो ग्रोथ है वहीं रुक जाएगी. एक बार आप अपने कंफर्ट जोन में घुस कंफर्ट जोन में अगेन आप जो स्किल्स आपके पास हैं आप उसी को यूज करे जा रहे हो, जो काम आपके हाथ में आप वही बार बार करे जा रहे हो. If you want to explore something, if you want to do something different, then you have to come out of your comfort zone. करेक्ट. सो मैं हमेशा ये मानता हूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, फटाफट वो नौकरी छोड़ो या काम बदलो और कुछ नया स्टार्ट कर लो. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में घुस गए एक बार, तो वो ग्रो नहीं करने वाला. ये मेरे से आज लिख के ले. दिस इज़ वॉट ड्रोव मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. जब मैं बैंक में था और मुझे ये हो गया था कि यार नहीं, अब मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आई हैव अचीव्ड अ सर्टन थिंग्स है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. सो आई थॉट वाई नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस. लेट्स टेक दैट स्टेप. ये नहीं पता कैसे एग्जीक्यूट करना है, रिसोर्सेज है या नहीं है, वो फिगर आउट नहीं हुए हैं. बट जब निकले तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट होती गई, क्योंकि वो एक करेज दिखाने वाली बात होती है यार. एक बार डर बहुत लग रहा था ऑब्वियसली कि अब चलेगा नहीं चलेगा, लेट्स गो बैक टू द जॉब. पैसे तो आ रहे हैं, मंथली सैलरी गिरती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद यू हैव टू हायर पीपल, क्योंकि आपका बिजनेस ही आपके लोगों से होता है. ठीक है, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आपका लोग होते हैं. अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. अब जब आप आजकल स्टार्टअप शुरू करते हो तो यू नो हायर पीपल जो उनको आप जानते हो. मुझे ऐसा लगता है आप अपने नेटवर्क से चुन के लोग लेके आते हो जिनका काम आपने देखा है, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, एंड व्हेन you bring those people in your business with that responsibility, you feel somewhat responsible for their growth as well, along with your business. So आपके ऊपर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सो अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत है तो गो फॉर इट. आपको लगता है कि
when you lead some people, it drives you, you are the best of yourself, then just do it. बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, करेज होनी चाहिए कि यार मैं जॉब अपनी एक सिक्योर्ड जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच, नो वन इज़ देयर विद मी, मुझे सब कुछ अपना ही दिमाग यूज़ करना है, यू नो आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड सम पीपल हु विल बी जॉइनिंग मी इन माई टीम. बट अगर आप में वो चीज़ है, यू हैव दैट आइडिया, गो फॉर इट, एग्जीक्यूट इट. सो इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आज के टाइम पे व्हाटएवर यू सेड, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आज से पहले हर कोई क्या सोचता था, जब आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, एज एन एंटरप्रेन्योर you need to be the laziest person, then only you'll start delegating work Correct. to people in your company. Right. But as per my experience, you know, in your own company you have to be the most hard working employee. That's Right? correct. When you are starting a business, I believe. Exactly. Yeah. So- When you're on early stage, you have to In set the up the foundation of your business. तो अब तो आपको होना ही पड़ेगा यार. Correct. Ideation तो आप ही की है. So initial stage पे you have to be the most hardworking person in your own company, hardworking employee in your own company. Once you have stabilized your company, after that you can afford to, like, you know, start delegating, and उस time पे you can you know, focus more on coming up with new ideas, how to scale the business, and focus on that particular thing. Yeah. When you're doing a job, you look up to your seniors. You know, you learn from them. You learn from their good decisions. और मे बी सम ऑफ देयर मिस्टेक्स, जहाँ पर आपको लगता है यार ये मैं होता तो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाता, मैं इसको ऐसे रन करता, ऐसे नहीं करता. ठीक है. Correct. तो यू लर्न अ लॉट, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, देयर मिस्टेक्स, देयर यू नो गुड डिसीजंस. अब वैसे ही वही चीज़ मेरे ख्याल से अप्लाई होती है व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस. Exactly, and so this is one aspect, and the other aspect is, जब हम बार बार बात करते हैं ना जॉब वर्सेस बिजनेस की भी बात करते हैं, तो जब हम जॉब में होते हैं ना, तो जब मंथ एंड आ रहा होता है, वी आर दी हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी नो कि अब तो दिन है सुहाना, सैलरी आने वाली है. बट वेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जब मंथ एंड आ रहा होता है ना, आपके सर पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही होता है दैट यू हैव टू पे दीज पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू. तब आपको अपनी इनफ्लो का वो खुशी से ज्यादा आपको ये चीज का फिर भी स्ट्रेस होता है, एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेजेस. आपको ये वाला स्ट्रेस होता है दैट ऑल द पीपल हु आर बिलीविंग इन मी, ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, आई नीड टू, यू नो, गिव इट बैक टू देम. करेक्ट. बल्कि बहुत ही मतलब कोइंसिडेंस है कि मेरी MBA बैच का रियूनियन प्लान हो रहा है, और आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय क्लासमेट, ही इज़ ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस. यही एग्जैक्टली बात हो रही थी कि यार 25 तारीख को ना दुख होनी शुरू हो जाती है करेक्ट. कि 1 तारीख को सैलरी निकाली है, 30 मेरी तो 20th को हो जाती हाँ, है. और वी आर पेइंग आवर सेल्स द लास्ट, यू नो, बिकॉज correct. पहले हमें अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने अगर हमारा ऑफिस रेंट पे है या फिर और भी वेंडर्स हैं जिनको पे करना है, सो वी हैव टू पे देम ऑफ फर्स्ट, यू नो, देन वी विल पे आवर सेल्स. तो 25 तारीख तक स्टार्ट हो जाता है. और पहले जब जॉब में थे तो होता था यार क्या हो गया, 28 तारीख है आज, चल पैसे खत्म हो गए, 2 दिन बाद पैसे आ ही जाएंगे, क्या टेंशन है, कुछ नहीं होता. और कभी 1 घंटा भी सैलरी लेट हो जाए तो यार आई क्यों नहीं अभी तक. बट नाउ इट्स लाइक, यू नो, आप आज के टाइम पे खुद भी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यू मेक श्योर दैट यू डोंट डिले द सैलरी. व्हाटएवर हैपेंस, सैलरी टाइम पे जानी है, चाहे अपना पे आउट डिले कर सकते हो, बट यू हैव टू पे द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू ऑन टाइम. सो बहुत ही पुरानी सेइंग है, बट व्हेन देयर इज़ अ हायर रिस्क देयर आर हायर रिवॉर्ड्स, यू नो. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 60 लाख रुपीज़ अगर आप जॉब में कमा रहे हो तो आपकी ग्रोथ स्लो ही होगी, पर आप बिजनेस में कमा रहे हो तो देयर इज़ नो लिमिट. यू कैन ग्रो इट टू 6 crores, इवन 60 crores इन सम टाइम, if you are not doing something right. That's what I believe, कि just go for it, just, you know, take that step. If you are passionate enough for your own idea, you know, execute it. नहीं तो 5 साल बाद यही रो रहे होगे यार मेरा आइडिया उसने चुरा लिया, उसने एग्जीक्यूट कर लिया, वो बिलियनर बन गया, कमेलियाज में रह रहा है. Correct. I mean, if you have that idea, you know, focus on the execution plan. Resources आ जाते हैं. Resources आज के टाइम पे कमी नहीं है. If you have a nice idea, forget nice idea. If you just have something that you can execute, you know, that can be something, you know, जो already execute हो चुका है. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप आज उसको बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो, गो फॉर इट. रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे इफ यू हैव अ नाइस बिजनेस प्लान. और मुझे ये भी लगता है कि यार आपकी स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता.
अगर आपको ऐसा डर है कि मैं बिजनेस करने निकलूंगा और वो फेल हो गया तो क्या, यार वापस जॉब पर में चले जाना। करेक्ट। कम से कम आपको ये तो क्लियर होगा कि यार मैंने बिजनेस ट्राई करके देखा, ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार मैंने बिजनेस ट्राई करके नहीं देखा लाइफ में और मुझे नहीं पता वो सक्सेसफुल टर्न आउट होता या फेलियर टर्न आउट होता, पता नहीं आपको। बट अगर आप एक बार करके देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा जो आइडिया था वो काम कर सकता था। अगर नहीं काम किया तो आपकी स्किल आपसे कोई नहीं चुरा सकता। यू कैन गो बैक टू योर जॉब। सो सबसे पहली चीज, इफ यू आर गेटिंग इनटू बिजनेस, गो विद दैट माइंडसेट कि करके ही रहना है. दैट काइंड ऑफ पैशन एंड मोटिवेशन शुड बी देयर इन यू. नंबर टू, गॉड फॉरबिड नहीं वर्कआउट हुआ, द काइंड ऑफ लर्निंग्स यू हैव एक्यूमुलेटेड, वो लर्निंग्स आपको किसी भी जॉब में कम से कम अगले 10 सालों में नहीं मिलती, जो आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में 1 साल में मिल जाएंगी. You can use that knowledge and work for another I startup. think That is okay. that trait, that skill which you will acquire doing your own business will keep you on the top of the pyramid always. Exactly. Yeah. Always. क्योंकि आपने एक ऐसी स्किल एक्वायर कर ली जो सबके पास नहीं होती. So in your entire career, was there a moment which gave you that confidence कि अगर आप किसी और के लिए कर सकते हो तो अपने लिए भी कर सकते हो? यार मोमेंट्स तो बहुत सारे थे, बट आई थिंक एक पर्टिकुलर मोमेंट है जहाँ पे सो आई वाज वर्किंग विद दैट डेंटल ग्रुप. आई वाज, एज आई टोल्ड यू, आई वाज डायरेक्टली वर्किंग विद द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, एंड डिसीजन मेकिंग वाले मोमेंट्स बहुत सारे आते थे. Right. एंड वहाँ पे हमसे भी एडवाइस लिया जाता था. Right. एंड तब कुछ प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे थे विच वॉज अ डिस्कार्डेड थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. That project was given to me. I worked on it for 3 months. Then I presented the overall progress, and everyone realized this can be a very big thing. So I that remember. was my brainchild, and I worked on it, and I took it from point A to point B, as I talk about that methodology. And my CEO wanted to do something with that product. वो उसको एक different brand में merge करना चाहते थे. So your brainchild but still your stepson, I would say. Stepson. So he wanted to merge it with a different business. I almost fought. Imagine 25-26 year old guy, वो अपने कंपनी के सीईओ से लिटरली लड़ रहा है कि ऐसा नहीं होगा. दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड. आई नो कि इसकी वर्थ क्या है. इसको आप इस तरह से पोजीशन करो मार्केट पे. एंड क्यों, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ये चीज़ मान ली. एंड टुडे that product is a separate company which is funded by one of the biggest investment groups in US. So So- are you still a part of that company? No. So that was the चुपता है? moment. बहुत ज़्यादा यार. So that was the moment that gave me that confidence that if I can do it for someone else, why can't I do it for myself? Correct. At the same time, जो वो bad taste था वो भी आया. क्यों? क्योंकि मैंने जब उसको बिल्ड करा तो आई वॉज द बेस्ट पर्सन इन द कंपनी. बट जब मैंने बोला कि आई शुड ऑल्सो हैव अ शेयर इन द पाई बिकॉज आई हैव बिल्ड दिस प्रोडक्ट, सो वहां पे who is Akash Manchanda. So that was one of those moments that gave me that motivation but also gave me that push to move out. So you were a nanny to that product. That kid was never yours. Obviously that was not my kid, but at the same time I treated that thing as my own. And जब उसके अंदर ऐसा कुछ opportunity मुझे नहीं दिखी तो I thought it's better to move out and build something that I can truly call mine. Yeah. So that was the call I took. But yeah, I mean, Harshul, same question for you because Yeah. we share almost a similar story. So Correct. same question for you. So yeah, like I said, I come from a business family. I have seen in my family my father doing business from last 40-45 years. Irrespective of the fact that I didn't join his business, but मेरे mind में हमेशा से था कि I want to do a business. No, I had no idea. जैसे आपके पास आइडियाज थे, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था कि यार मेरे पास मुझे ये करना है या मुझे वो करना है. बस मेरे माइंड में एक ज़ील थी, एक चुल थी कह लूँ कि बिज़नेस बनाना है. बट ऑब्वियसली उस टाइम पे शायद वो करेज नहीं थी कि रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही पेरेंट्स से हेल्प लेना चाहता था कि बिज़नेस बनाने के लिए. मैं चाहता था कि मैं खुद से कुछ करूं. बट सो आई डिड सर्टन डिफरेंट जॉब्स इन मल्टीपल बैंक्स. आई took that experience that helped me a lot. मुझे सिखाया कि कैसे अ कंपनी रन्स.
एंड कैसे टीम को हैंडल किया जाता है, वो लीडरशिप स्किल्स Right. उधर से आए। जब वो चीज़ें एक्वायर कर ली ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सो दोज थिंग्स हेल्प मी। एंड वो जो चीज़ मैंने अभी पहले बोली थी कि मुझे लास्ट जॉब में ऐसा हो गया था कि देयर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न, so I thought this is the time I should move out, and I have acquired a lot of skills for myself which I can actually put in use in my business, and I can do something 5 years down the line. I am in a very happy place कि मैंने ये डिसीजन लिया, जो मेरा ड्रीम था हमेशा से कि मुझे अपना बिजनेस बनाना है, वो मैं अचीव कर पाया। So now again, it is not bad to do a job or a business. According to me, it is about the mindset कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। But Akash, our audience really want to know your opinion on this कि job better है या business? So usually I avoid these kind of questions because I don't really want half knowledge के साथ कोई decision ले basis what I'm saying, but at the same time I'll share my thoughts. So मेरे thoughts ये कहते हैं कि अगर आपको day to day running of your household and day to day मैनेजमेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस करना है, आप जॉब करो, कोई बुरा नहीं है उसके अंदर, आप बिल्कुल जॉब करो, आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको मिलेगी, लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, एक्वायर न्यू स्किल्स, यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, राइट? एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगी एंड टू लॉट ऑफ पीपल दैट गिव्स देम द पीस ऑफ माइंड दैट दे वांट। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, देन आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो जॉब में मुझे अभी लगता है नहीं हो सकता है। बिजनेस के अंदर इफ लेट्स से यू आर बिल्डिंग समथिंग ऑन योर ओन एंड इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट, आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हो तो आप वहां से अचीव कर पाओगे। चांसेस आर मोर दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ थ्रू दिस पर्टिकुलर राउट। सो दैट इज समथिंग आई बिलीव इन। वो कहते हैं ना कि यार एक इंसान पूरी फैमिली की आने वाली जनरेशन को चेंज कर सकता है, राइट? कि अगर आप जॉब करते आ रहे हो और आगे हो सकता है कि आपके बच्चे भी जॉब ही करेंगे, बट अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया लाइफ में, अचीव कर लिया तो आगे आने वाली जनरेशन की सबकी ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। इट विल जस्ट गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हो सकता है कि आई हैव अ 1 year old son, हो सकता है कि when he turns 18 19, he don't really want to get into business side of things. Right. Maybe वो content creator बनना चाहता है। So if let's say I've built some sort of wealth for myself and for the family, वो सिर्फ मेरे बेटे को एक flexibility दे देगा to choose the option. Rightly said भाई कि if our next generation wants to pursue something and they have certain backup, so that will give them a breather to try something new, जो शायद हमारे पास ऑप्शन नहीं था when we wanted to start something of our own at the beginning of our career. रिसोर्सेज नहीं थे या फिर वो रिसोर्सेज की वजह से करेज नहीं था, वो शायद चेंज हो जाता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। करेक्ट। आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस यू आस्क मी दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम्स कि क्रिकेट खेलते थे, स्टेट लेवल पे खेला, गिटार बजाते थे, यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स। सो कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर आई वुड से उसके अंदर एक्सेल करा ही नहीं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह ही कंसिडर किया। बिकॉज अगर आपके पास बैकअप नहीं है, देन ऑब्वियसली यू विल टेक दैट राउट जो श्योरली आपको रिजल्ट देगा, श्योर शॉट आपको रिजल्ट देगा in terms of earning that livelihood. But on the other side, if let's say our upcoming generation have that kind of backup, then obviously they can explore with that open mind. Correct. And I think this is one of that biggest push that keeps me working towards what I'm doing right now. Thank you so much, Akash, for coming to our podcast. It was lovely having you, and we enjoyed a lot having discussion about this kind of mindset कि जॉब अच्छा है या बिजनेस। बट ऑब्वियसली एट द एंड हमने यही सीखा, इट इज़ जस्ट अबाउट द माइंडसेट, इट इज़ जस्ट अबाउट द चॉइस एंड आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एपिसोड। वील बी बैक सून विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, और ऐसी बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस टिप्स के बारे में जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती। वील बी बैक सून, कीप वॉचिंग द स्पेस।